नमस्कार, मैं मनविंदर सिंह और आप देख रहे हैं उदय न्यूज लाइव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। देश में बेरोजगारी ने युवा वर्ग की कमर तोड़ दी है, जिसके चलते एक तरफ युवा, दूसरी तरफ देश का किसान मोदी सरकार की नीतियों से परेशान है। इस बात को लेकर आज किसानों के हित में दिल्ली की ओर कूच किया। आइए जानते हैं खबर विस्तार से। दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे से हर दूसरे मिनट किसान ट्रैक्टरों के साथ 26 जनवरी को दिल्ली में होने वाली ट्रैक्टर परेड के लिए कूच कर रहे हैं। किसान अपने ट्रैक्टरों के काफिलों के साथ दिल्ली मोर्चा फतेह करने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। दिल्ली कूच कर रहे किसानों का कहना है कि ठंड, कोहरे, बरसात और तूफान से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके दिलों में जज्बा इतना है कि जब तक 3 कृषि कानून वापस नहीं हो जाते, उनका आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। ਪਿੰਡ ਚੰਨਣਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਈ ਸੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ। ਉਸ ਦਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਿਰਾਪੁਰ ਜ਼ਹਿਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੀ ਆ ਬਸ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਈਏ। ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪੀਸਫੁਲੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਦਾ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ, ਪਿੰਡ ਸਮਰਾਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਆ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਠੰਡ ਮੀਂਹ ਦਾ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਤੂਫਾਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਰੁਕਣਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬਣਦਾ ਆ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਵਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਰਫ ਬੱਬਲ। ਪਟਿਆਲਿਓਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ 26 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਦਿੱਲੀ, ਅਸੀਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਆਪਣਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ 26 ਦੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 19 ਵਾਰ ਜਿੱਤੀ ਆ, 20ਵੀਂ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਘਰ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਐਵੇਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਬੜਾ ਜੋਸ਼ ਆ, ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਡਾਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ। दिल्ली जा रहे जी। ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਗੇ? दिल्ली फतेह करके आवांगे जी। अपने जौन से कानून ने वापस करवा के आवांगे जी वापस। मेरा नाम जी कुलवंत सिंह। दिल्ली जा रहे हैं जी, अंदोलन जित के आवांगे जी। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤ ਪਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਸਿੰਘੂ ਬੱਟ ਦਾ ਸਿੰਘ ਬੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਸਰ, ਕੱਲ ਦੀ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ? ਕੱਲ ਦੀ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰੀ। ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ 100 ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ। 100 ਟਰਾਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਸਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ 100 ਟਰੈਕਟਰ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ 'ਚ ਆਏ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਰਸੂਲਪੁਰ ਪਿੰਡ ਸੈਦਾ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ 19 ਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ 20ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜੇ, 6 ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਸਾਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਟਰਾਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਹੀ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਪਿੰਡ ਸਮਰਾਏ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਜੋ ਮੋਦੀ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆਪਣੀ ਸਖੀਅਤ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਠੰਡ ਦੀ, ਕੋਰੇ ਦੀ, ਮੀਂਹ ਦੀ, ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। दिल्ली कूच कर रहे किसानों का कहना है कि उन्हें ठंड, कोहरा, बरसात और तूफान से
कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके दिलों में जज्बा इतना है कि जब तक 3 कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते वो आंदोलन ऐसे ही जारी रखेंगे। 26 जनवरी को लेकर होशियारपुर में NSUI के अध्यक्ष ऋषु आदिया की अगुवाई में अलग अलग कॉलेज के नौजवानों की तरफ से होशियारपुर के रोशन ग्राउंड में इकट्ठा हो विद्यार्थियों में किसानों के हक में दिल्ली की ओर कूच किया गया, जिस मौके बड़े काफिले में नौजवानों की तरफ से अपने अपने गाड़ियों में सवार हो दिल्ली की ओर रवाना हुए। वहीं NSUI के अध्यक्ष ऋषु आदिया ने कहा कि अब देश के युवा झांसाराम के झांसे में अब नहीं आएंगे। देश में बेरोजगारी ने युवा वर्ग की कमर तोड़ दी, जिसके चलते एक तरफ युवा, दूसरी तरफ देश का किसान मोदी सरकार की नीतियों से परेशान है, जिसको लेकर किसानों के हक में दिल्ली की ओर कूच किया जाएगा। ਇਹ ਆਪਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮੇਂ ਰੱਖਿਆ ਵਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਡਿਗਰੀ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਡਿਗਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਜੋਬਲੈਸ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਹਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਯੂਥ ਹਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਆ, ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਧਰਮ ਜਾਤ ਪਾਤ ਸਭ ਵਿੱਚ ਵੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਕਿ ਝਾਂਸਾ ਰਾਮ ਜੀ ਝਾਂਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇ ਕਰਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਟੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਝਾਂਸਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਝਾਂਸਾ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਝਾਂਸੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਸੀਨਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਾ ਕਿ ਚੀਨ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਗਾਂਵ ਵਸਾ ਚੁੱਕੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਉਂਡਰੀ ਟੱਪ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਝਾਂਸਾ ਰਾਮ ਜੀ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਯੂਥ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਆਪਾਂ ਛਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਡਿਗਰੀਆਂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਸਾੜਨੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੀ ਕਰਨੇ ਤੇਰੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਝਾਂਸਾ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਕਿ ਚਾਹ ਵੇਚੋ ਸਮੋਸੇ ਵੇਚੋ, ਐਡੀ ਵਕਾਲਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਸ਼ਾ ਇੰਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਜੇ ਜੋਬਲੈਸ ਆ ਬੰਦਾ, ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਡ ਆ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕ ਲਾਣੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਬ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੂਜੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ 'ਚ ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੇ, ਸ਼ਰਮ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਵਾ ਕਿ 4 ਜਾਂ 5 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੜੋ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਾ ਖੜੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਲੜਾਈ ਆ ਸਭ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਨੀ ਆ। ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ जय जवान जय किसान। गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के मौके अंबाला में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला शिरकत करेंगे। देश भर में 72वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। अंबाला में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को मंच से गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं भी दी। वहीं मंच से अपने संबोधन के दौरान दुष्यंत चौटाला ने कोरोना वैक्सीन बनाने वाले देश के वैज्ञानिकों को भी सलाम किया और कहा कि भारत न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी मदद पहुंचा रहा है। वहीं अंबाला पुलिस प्रशासन में किसानों का भी डर साफ नजर आया, क्योंकि जहां पर गणतंत्र दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, वहां जाने वाले हर रास्ते पर पुलिस ने कड़ा पहरा और बैरिकेड्स लगाकर रास्तों को पूरी तरह बंद कर दिया था। आज यहाँ अंबाला की इस पावन धरा पर तिरंगा फहराते हुए बड़ा गौरवान्वित महसूस हो रहा हूँ। बेहद खुशी की बात है। आज से 71 साल पहले हमारे देश में बाबा भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में जिस संविधान का निर्माण हुआ, मजबूती के साथ 71 साल का ये लंबा दौर इस देश की एकता और अखंडता को एकजुट रखने में एक महत्वपूर्ण योगदान हमारा संविधान देकर गया है। भाइयों बहनों, गणतंत्रता दिवस के इस अवसर पर हमें जरूर एकजुट होकर से जूझ रही भारत ने अपने आप ये संदेश दुनिया भर में दे दिया कि हम इस महामारी से
जहां लड़ रहे हैं वहां दुनिया का सहयोग भी करने का काम कर रहे हैं। मैं बधाई देता हूं उन साइंटिस्टों का जिनने हमारे देश के अंदर हिंदुस्तान में बनी हुई कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए 2 वैक्सीन तैयार करने का काम किया, और केवल मात्र हिंदुस्तान के नागरिकों को ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लगभग 90 देशों के अंदर भी उस वैक्सीन को पहुंचाकर ये साबित कर दिया कि भारत हर प्रकार से इस लड़ाई से लड़ेगा भी और दुनिया भर का सहयोग कर इस लड़ाई से जीतने का भी काम करेगा। मनीषा राणा के नेतृत्व में 11वें राष्ट्रीय मतदान दिवस का आयोजन किया गया और उन्होंने युवाओं के लिए संदेश दिया। आइए देखते हैं ये खास खबर। भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंजाब चंडीगढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र खरड़ SAS नगर और डेराबस्सी के निर्देशानुसार जिला स्तरीय प्रशासनिक परिसर में सहायक आयुक्त जनरल मनीषा राणा के नेतृत्व में 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन किया गया और 18 साल की उम्र में हर युवा को अपना वोट देने के लिए आमंत्रित करते हुए मनीषा राणा ने कहा कि लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने के लिए अपना वोट डालना और इसका सही उपयोग करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने 1 वीक का पीरियड दिया था फॉर इनवाइटिंग ऑल काइंड ऑफ जो भी ऑब्जेक्शंस हैं, एंड मैंने पर्सनली जाके डेराबस्सी में चेक किया था तो वहाँ पे हमें 1-2 BLOs की काम में गलती मिली थी। हमने तुरंत एक्शन लिया था और सारा रेक्टिफिकेशन करवाया हमने, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी जगह जो गलतियाँ मिली थी सारी रेक्टिफाई कराई है। तो कोई इशू नहीं है। हमने BLO जिन्होंने गलत काम किया है या जिन्होंने अच्छे से अपनी ड्यूटी नहीं करी है वहाँ पे हमने एक्शन भी लिया। वोटर कार्ड ते आधार कार्ड की गल करी हमने 1 वीक का पीरियड दिया था फॉर इनवाइटिंग ऑल काइंड ऑफ जो भी ऑब्जेक्शंस हैं, एंड मैंने पर्सनली जाके डेराबस्सी में चेक किया था तो वहाँ पे हमें 1-2 BLOs की काम में गलती मिली थी। हमने तुरंत एक्शन लिया था और सारा रेक्टिफिकेशन करवाया हमने, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी जगह जो गलतियाँ मिली थी सारी रेक्टिफाई कराई है। तो कोई इशू नहीं है। हमने BLO जिन्होंने गलत काम किया है या जिन्होंने अच्छे से अपनी ड्यूटी नहीं करी है वहाँ पे हमने एक्शन भी लिया। वोटर कार्ड ते आधार कार्ड की गल करी सकते हैं जो लोगों के बीच जाके ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ अवेयरनेस देनी चाहिए। हर तरह से अवेयरनेस होगी, सबको सब इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाएंगे, लाइक मीडिया को यूज़ करना है, सोशल मीडिया को यूज़ करना है, जो हमारे डिफरेंट मतलब एक जगह पे जो हमारा स्टाफ है फ्रॉम लाइक SDM से लेकर BLO नीचे BDPO ऑफिस, सारे ऑफिसेस को हम इन्वॉल्व करेंगे। नॉट जस्ट वन ऑफिस, कोई SDM का या किसी एक ऑफिस का काम नहीं है, सबका काम है। मतलब वोटिंग इज अबाउट एवरीवन, वी हैव टू गेट एवरीवन इनटू लूप। तो अवेयरनेस सारे मीडियम्स के थ्रू एंड सारे ऑफिसेस के थ्रू व्हाटएवर वी कैन डू फॉर दैट, तो वो सारा करेंगे। हम एक बार चुप कराई पीछे बड़ा SDM साहब ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਬੈਸਟ ERO ਹੈ SDM ਖਰੜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਬੈਸਟ BLO ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਰੜ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ 18-19 ਸਾਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ, ਲੇਖ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਾਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਾਇਆ। ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਪਰਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਕ ਚੋਣ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨੀਡਰ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮ ਵਿਰਗ ਜਾਤੀ ਸਮੁਦਾਇ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਲਚ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने राष्ट्रीय मतदान दिवस को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किया संबोधित। हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने सोमवार को 11वीं राज्य स्तरीय राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से सभी उपायुक्त,
जिला स्तर के वरिष्ठ अधिकारी एवं विभाग से संबंधित अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। मुख्य सचिव ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को मताधिकार का प्रयोग करने की शपथ दिलाई। इस ऐतिहासिक राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे, जिसकी इम्पोर्टेंस आपको अनुराग अग्रवाल जी ने अपने इंट्रोडक्शन में बताई। हमको हमेशा याद रखना है कि कल हम 26 जनवरी का राष्ट्रीय त्यौहार मना रहे हैं और हमारा मुल्क यूनिक है, क्योंकि अगर हम बहुत से विकसित यूरोपियन और अमेरिकन राष्ट्रों को भी देखें तो हम उनसे कहीं ज़्यादा आगे हैं। हमने जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो हमने यूनिवर्सल वोटिंग राइट्स, यूनिवर्सल सफरेज सबको दिया, महिलाओं को, पुरुषों को, सारे व्यक्तियों को। बहुत से डेवलप्ड कंट्रीज दुनिया में ऐसे थे जिन्होंने विमेंस वोटिंग राइट्स इंडिया के बाद अपनी महिलाओं को दिए। दूसरी जो चीज़ हमको याद रखनी है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो डेमोक्रेसीज बनी, जो डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट्स हुए, वो बहुत से कंट्रीज में फेल हो गए और एक इंडिया अकेला ज्वलंत उदाहरण है जहां हमारी डेमोक्रेसी स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ फ्लरिश की, आगे पनपी और उसमें एक बहुत बड़ा रोल हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप का, हमारा वोटर्स राइट्स का होता है, इलेक्शंस का होता है। जैसे कि सही कहा गया है कि जो चुनाव होते हैं, दे आर ए सेलिब्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी, वो प्रजातंत्र का एक त्यौहार होते हैं। परंतु इसके साथ साथ विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा दायित्व भी आता है कि कुछ जो प्रैक्टिसेस हैं, मैं उनको कुरीतियां तो नहीं कहूँगा, पर एज वोटर्स हमको सजग रहना है। सबसे पहली चीज़ है कि हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप इतना मैच्योर और परिपक्व हो गया है कि हमारे यहाँ इलेक्शंस होते हैं, फेयर होते हैं। अब पूरी दुनिया ने इस बात को मान लिया है कि जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन प्रणाली से इलेक्शंस होते हैं वो दुनिया के सबसे सहज और सबसे ट्रांसपेरेंट और पारदर्शी हैं। आप में से कई लोगों को पता होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कंसल्टेंसी दी है बहुत से डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज को, अफगानिस्तान में, मॉरिशस में, नेपाल में, जहां हमारे इलेक्शन एक्सपर्ट्स बुलाए गए और हमने वहां के मुल्कों को, वहां की सरकारों को ट्रेनिंग दी, वहाँ के इलेक्शन ऑफिशियल्स को, कि इलेक्शंस कैसे कराए जाएं। दूसरी बात जो सबसे बड़ी है कि जब हम वोट देते हैं तो एज ए वोटर, एज ए नागरिक, हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम सबसे अच्छे कैंडिडेट को वोट दें और उस वक्त वी हैव टू राइज अबव, हमें कई चीज़ों से ऊपर उठना चाहिए। तो वोट देना भी एक बहुत बड़ा धर्म है, एक निष्ठा का काम है और उस वक्त हमको इस चीज़ से स्वय नहीं हो जाना चाहिए, प्रभावित नहीं होना चाहिए कि अमुक कैंडिडेट अमुक पार्टी का या तो मेरी जाति का है या मेरे धर्म का है या वो मुझे इस तरीका का कोई एल्योरमेंट या फ़ायदा दिलवाएगा। तो ये जो कुछ कुरीतियाँ सी आ जाती हैं हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, उसका हमें ख्याल रखना है। दूसरा, आप लोगों ने अखबारों में बहुत पढ़ा होगा, एक पूरी नेशनल लेवल डिबेट हमारे पार्लियामेंट में भी चली है, अखबारों में भी चली है कि एज ए नेशन, एक राष्ट्र के रूप में हमको ऐसे कैंडिडेट्स को रिजेक्ट करना चाहिए जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, जिनका आपराधिक बैकग्राउंड है। तो बहुत से लोग कहते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टीज का काम है, उनको ऐसे उम्मीदवारों को टिकट नहीं देना चाहिए। उस बात में भी सत्य है, पर सबसे बड़ा सत्य है और सबसे बड़ी पावर हमारे वोटर्स के हाथ में है। अगर हमको ऐसा लगता है कि किसी कैंडिडेट का क्रिमिनल बैकग्राउंड है, प्रवृत्ति है, शोहरत है, तो हम लोग एकजुट होकर एक प्रण, एक संकल्प ले सकते हैं कि हम अपने डेमोक्रेटिक प्रोसेस में सिर्फ उन उम्मीदवारों को वोट देंगे जिनकी छवि अच्छी है, नॉन क्रिमिनल है, गैर अपराधी है। तो ये चीज़ें हम लोग को ध्यान में रखनी चाहिए। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है कि इलेक्शन के दिन हर आदमी को जाके वोट देना है। जब हम कहते हैं कि हमारी एपिक कवरेज 99% हो गई, लेकिन इलेक्शन के दिन सिर्फ 55 या 60 या 65% वोटिंग होती है, तो वो भी अच्छा नहीं है, क्योंकि ये ज़रूरी है। उस दिन छुट्टी होती है और आजकल तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इतने वृहद इंतज़ाम किए हैं, मॉडल वोटर्स बूथ हैं, हर तरह का इंकरेजमेंट है। तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाके वोट देना चाहिए। स्पेशली मैं देख रहा हूँ जो हमारे फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जो यंग वोटर्स हैं, जिनको 18 साल के बाद एपिक कार्ड मिलता है,
उनमें उत्साह है, पर उनमें एक जिम्मेदारी भी है कि हमेशा हम जो है सबसे कॉम्पिटेंट कैंडिडेट को वोट दें। चौथी बात है कि वोटिंग हमारी पीसफुल होनी चाहिए, कहीं भी किसी तरीके का झगड़ा, क्लैश, संघर्ष नहीं होना चाहिए। पूरी दुनिया में इस बात की मिसाल दी जाती है कि इंडियन डेमोक्रेसी सबसे ज़्यादा मैच्योर है, सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेटिव है। अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इसको हम और इंक्लूसिव बनाएं, ताकि सारे वर्ग के लोग, सारे तबकों के लोग इसमें फ्री और फेयर रूप में वोट कर सकें। और मेरे को पूरा निश्चय है और यकीन है कि आगे हम हरियाणा में इतने फ्री और फेयर पोल्स करेंगे कि हरियाणा की मिसाल पूरे मुल्क को, पूरी दुनिया में दी जाएगी। जय हिंद। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। धन्यवाद। आज का दिन 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी और भारत के संविधान का अंगीकरण होना 26 जनवरी को 1950 को, और उससे एक दिन पहले चुनाव आयोग की स्थापना होना इस बात को इंगित करता है कि चुनाव का कार्य कितना पुनीत है, कितना महत्वपूर्ण है, और ट्रांसपेरेंट और फेयर इलेक्शन हमारे देश की डेमोक्रेसी की आधारशिला है। इसके ऊपर ही और मैं समझता हूँ कि पूरे विश्व के विभिन्न देशों में भारत एक अग्रणी देश है और चुनाव आयोग का और हर राज्य में मुख्य चुनाव अधिकारी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी का और नीचे एक पूरे प्रशासनिक प्रणाली का होना इस बात को दर्शाता है कि किस प्रकार ये पूरी व्यवस्था जो है कितनी मजबूत है और चुनाव आयोग के दिशा निर्देशन में काम करती है और बहुत ही बढ़िया ढंग से चुनाव के कार्यों को अंजाम देती है। कि आज 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के तहत चुनाव आयोग 2 नए कार्यक्रमों की शुरुआत कर रहा है सर, और पहला है ई एपिक की शुरुआत। जो एपिक कार्ड है उसको डाउनलोडेबल format में it will be available on our mobile phones, and once somebody wants to go and vote, then that epic card will work as a identity proof। तो epic को डाउनलोडेबल करा है और साथ में ही एक वेब बेस्ड रेडियो स्टेशन शुरू करा है चुनाव आयोग ने, जिसका इसी समय पर माननीय राष्ट्रपति महोदय उन दोनों इवेंट्स को लॉन्च कर रहे होंगे। खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए उदय न्यूज़ लाइव। नमस्कार।